ڈیئر ویورز السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اسلامی دنیا کے ایک عظیم ہیرو کی کہانی سنا رہے ہیں جس نے امریکہ سمیت کئی عالمی طاقتوں کا تن تنہا مقابلہ کیا اور شہادت کی موت حاصل کی۔ صدام حسین سید خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا شجرہ نسب امام حسین علیہ السلام کے پڑپوتے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، جو اہل تشیع کے 7ویں امام بھی ہیں۔ موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے 12ویں صدی میں ایک بہت بڑے عالم دین احمد بن علی الرفاعی گزرے ہیں۔ یہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ انہی کی اولاد میں سے ایک شخص ناصر نے ابو ناصر قبیلے کی بنیاد رکھی۔ یہ قبیلہ پہلے یمن میں آباد ہوا اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے عراقی شہر تکریت اور اس کے قرب و جوار میں آباد ہو گیا۔ اس قبیلے میں 28 اپریل 1937 کے روز تکریت سے 13 کلومیٹر جنوب میں واقع العوجہ کے علاقے میں صدام حسین پیدا ہوئے۔ اس طرح شجرے کے اعتبار سے دیکھیں تو صدام حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھنے کے علاوہ حسینی سید بھی تھے، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ صدام حسین کا بچپن شدید مشکلات میں گزرا۔ ان کے والد اور بڑے بھائی ان کی پیدائش سے پہلے ہی کینسر کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے۔ صدام حسین کے ماموں نے ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری لی اور انہیں اپنے ساتھ بغداد لے گئے۔ صدام حسین کی والدہ نے دوبارہ شادی کر لی۔ جب صدام حسین کچھ بڑے ہوئے تو ان کے والدہ نے انہیں واپس العوجہ گاؤں میں بلوا لیا۔ یہاں ان کے برے دن شروع ہو گئے۔ صدام حسین کے سوتیلے والد ابراہیم الحسن صدام حسین سے بہت سختی سے پیش آتے اور انہیں اکثر مارتے پیٹتے تھے۔ انہوں نے صدام حسین کو تعلیم دلوانے کی بجائے بکریاں چرانے کا کام پر لگا دیا، لیکن قدرت نے صدام حسین کو صرف ایک چرواہا بننے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا۔ ان کی تقدیر میں ان سے بڑی کامیابی لکھی تھی۔ جب وہ 10 برس کے تھے تو ایک روز وہ فرار ہو کر وہ بغداد چلے گئے اور واپس اپنے ماموں کے ساتھ رہنے لگے۔ خیر اللہ طلفہ نے صدام حسین کو تعلیم دلوائی اور انہیں سیاست میں آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ جب صدام حسین جوان ہوئے تو خیر اللہ طلفہ نے اپنی بیٹی ساجدہ طلفہ کا نکاح بھی ان سے کر دیا۔ خیر اللہ طلفہ 1993 میں فوت ہوئے تھے اور آخر وقت میں صدام حسین کے وفادار ساتھی رہے۔ صدام حسین نے ابتدائی تعلیم بغداد کے ایک اسکول سے حاصل کی، پھر وہ عراقی لا اسکول میں 3 برس قانون پڑھتے رہے۔ 1957 میں 20 برس کی عمر میں وہ عراقی سیاسی جماعت باس پارٹی میں شامل ہو گئے۔ ان کے ماموں خیر اللہ طلفہ اس پارٹی میں اہم عہدے پر فائز تھے۔ اپنی سیاسی سرگرمیوں کی صدام حسین نے ایک اسکول کے ٹیچر کی ملازمت بھی کر لی۔ جب صدام حسین نے باس پارٹی جوائن کی تو اس وقت اس کے صرف 300 ارکان تھے، لیکن صدام حسین نے اس پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے دن رات سخت محنت کی۔ وہ مصر کے انقلابی لیڈر جمال عبد الناصر سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے مصر میں شاہ فاروق کی حکومت کا تختہ الٹ کر انقلابی حکومت قائم کی۔ صدام حسین کی نوجوانی کے دنوں میں عراق میں بادشاہت قائم تھی۔ فیصل ثانی عراق کے بادشاہ تھے۔ 14 جولائی 1958 کو جنرل قاسم نے فیصل ثانی کا تختہ الٹ کر حکومت پر قبضہ کر لیا، لیکن قاسم نے اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے عراق کی کمیونسٹ پارٹی سے اتحاد کر لیا، جو عرب ملکوں کے اتحاد یعنی پین عربزم کے خلاف تھی۔ دوسری طرف صدام حسین ان کے باس پارٹی پین عربزم چاہتی تھی، اس لیے باس پارٹی نے جنرل قاسم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے لیے ایک جرأت مند نوجوان کی ضرورت تھی جو جنرل قاسم پر گولی چلا سکے۔ سب کی نظریں صدام حسین کی طرف اٹھیں، جو ان میں سے سب سے زیادہ جرأت مند نوجوان تھے۔ پارٹی نے انہیں جنرل قاسم کو قتل کرنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ 7 اکتوبر 1959 کو صدام حسین اور ان کے چند ساتھیوں نے جنرل قاسم کی کار پر فائرنگ کر دی۔ اس فائرنگ سے ان کا ڈرائیور مارا گیا۔ جنرل قاسم کے بازو اور کندھے میں گولیاں لگیں مگر وہ بچ نکلے۔ بعد میں امریکیوں نے یہ مشہور کیا کہ جنرل قاسم کو قتل کرنے کا پلان دراصل امریکی خفیہ ایجنسی CIA نے بنایا تھا۔ اس میں مصری انٹیلیجنس بھی ملوث تھی، لیکن در حقیقت یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے جو صدام حسین ان کی باس پارٹی کو امریکی ایجنٹ ثابت کرنے کے لیے گھڑا گیا تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ امریکی CIA نے عراق میں جنرل قاسم کی حکومت کے خلاف اپنی کارروائیوں کے ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائی نہیں کیے۔ ایسا کوئی ثبوت پبلک اور میڈیا کے سامنے لایا ہی نہیں گیا جس سے صدام حسین کو امریکی ایجنٹ ثابت کیا جائے۔ بہرحال جنرل قاسم پر حملے نے باس پارٹی کو عراق کے نوجوانوں میں بہت مقبول کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں لوگ اس پارٹی میں شامل ہو گئے اور اس کی جڑیں بہت مضبوط ہو گئیں۔ لیکن جنرل قاسم نے صدام حسین اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ عراقی پولیس اور انٹیلیجنس سے بچنے کے لیے صدام حسین فرار ہو کر پہلے شام گئے اور پھر مصر منتقل ہو گئے، جہاں مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے انہیں پناہ دی۔ وہ نوجوان صدام حسین سے بہت متاثر ہوئے اور جنرل قاسم کی حکومت جب تک قائم رہی عبد الناصر نے صدام حسین کو واپس عراق نہیں جانے دیا۔ 1963 میں باس پارٹی کے حامی کچھ فوجی افسروں نے جنرل قاسم کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اس کے بعد صدام حسین کو وطن واپس آنے کا موقع مل گیا۔ صدام حسین واپس تو آ گئے لیکن ان کی پارٹی حکومت کے نشانے پر آ چکی تھی۔ اگرچہ صدام حسین کی باس پارٹی نے جنرل قاسم کا تختہ الٹنے میں انقلابیوں کی مدد کی تھی، لیکن عراق کے نئے صدر عبدالسلام عارف
इस पार्टी के दुश्मन बन गए। उन्होंने पार्टी के सारे अहदेदारों को हुकूमत से निकाल दिया और इसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। सद्दाम हुसैन ने सदर अब्दुस्सलाम आरिफ को भी कत्ल करने की कोशिश की, ताहम वो नाकाम रहे। उन्हें गिरफ्तार करके 2 साल कैद रखा गया। 2 बरस बाद वो जेल से फरार हो गए और अंडरग्राउंड रहते हुए अपनी पार्टी की मिलिट्री विंग की कमान संभाल ली। इसी दौरान 1966 में सदर अब्दुस्सलाम आरिफ का तैयारा बसरा के करीब क्रैश हो गया, उनकी मौत हो गई। 2 साल बाद 1968 में सद्दाम हुसैन की पार्टी ने नए सदर अब्दुर्रहमान आरिफ, जो कि अब्दुस्सलाम आरिफ के भाई थे, उनका तख्ता उलट दिया। हुकूमत पर कब्जा करने के बाद सद्दाम हुसैन ने वज़ीर आज़म अब्दुर रज़्ज़ाक नाइफ को ओहदे से हटा दिया। सद्दाम हुसैन खुद इन्हें गन पॉइंट पर एक तैयारे तक लेकर गए और उन्हें तैयारे में बिठाकर जिलावतन कर दिया। अहमद हसन अल बकर इराक के सदर बन गए और सद्दाम हुसैन उनके नायब सदर मुकर्रर हुए। इसके अलावा वो बास पार्टी के इनकलाबी कमांड काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन भी बना दिए गए। 1969 तक सद्दाम हुसैन पार्टी में ऑल इन ऑल बन चुके थे। गो के अल बकर एक सीनियर रहनुमा थे, लेकिन पार्टी की असल कमान सद्दाम हुसैन के हाथ में थी। सद्दाम हुसैन ने अपनी नई हैसियत में इराक की बहुत खिदमत की। उन्होंने इराक की तरक्की के लिए दिन रात एक कर दिया। इसके अलावा ख़वातीन की तालीम के लिए भी बहुत काम किया। इराक में उनकी शोहरत एक तरक्की पसंद और मुअस्सस सियासतदान की बन गई थी। उन्होंने मुल्क को तरक्की भी दी और साथ ही साथ शरपसंद अनासर को कुचलने के लिए इराक की फ़ौज और पुलिस की भी इंतहाई ताकतवर बनाया। वो मुल्क के अंदर तरक्याती कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उन्होंने इराक में सड़कों का जाल बिछाया और बेशुमार तालीमी इदारे भी कायम किए। उन्होंने मुल्क से बेरोजगारी और गुर्बत ख़त्म करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। 1976 में सद्दाम हुसैन इराकी फ़ौज में जनरल के ओहदे पर फायज हुए। सदर अल बकर बूढ़े होने की वजह से मुल्क की जिम्मेदारियां अदा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए सद्दाम हुसैन ने मुल्क की कंट्रोल अमली तौर पर संभाल लिया। उन्होंने मुल्क की खारजा पॉलिसी भी अपने अंदाज में तरतीब दी। 16 जुलाई 1979 को सद्दाम हुसैन ने इराकी सदर अल बकर को मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर कर दिया और ख़ुद सदर बन गए। सदर बनने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी से गद्दारों का सफाया शुरू कर दिया। बास पार्टी के सैकड़ों कारकुनों को गद्दारी के इल्ज़ाम में मौत के घाट उतार दिया गया। 1979 वो साल था जब ईरान में इस्लामी इनकलाब आ चुका था। बदकिस्मती से सद्दाम हुसैन की हुकूमत और नई ईरानी हुकूमत की आपस में नहीं बन सकी और दोनों मुल्कों में जंग शुरू हो गई। ये जंग 8 बरस तक जारी रही। इसमें बज़ाहिर तो इराक को फतह हासिल हुई, लेकिन इसके नतीजे में इराक के माली हालात बहुत ख़राब हो गए। वो सऊदी अरब और कुवैत के दिए गए कर्ज़ों में फंस गए। जंग के बाद कुवैत ने अपना कर्ज वापस मांगा और कोई रिलीफ नहीं दिया, तो मजबूरन सद्दाम हुसैन को कुवैत के खिलाफ फौजी एक्शन करना पड़ा। 1990 में इराकी फ़ौज ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। इससे अमरीकी सदर जॉर्ज बुश को इराक पर चढ़ाई करने का मौका मिल गया। उन्होंने सऊदी अरब को इराकी हमले का झूठा खौफ दिलाकर सऊदी अरब में फौजें उतार दी और इराक पर हमला कर दिया। 1991 में होने वाली इस जंग में बदतरीन बमबारी की गई। इसमें लाखों सिविलियंस मारे गए। इस जंग के नतीजे में सद्दाम हुसैन कुवैत छोड़ने पर मजबूर हो गए। अमरीका और इसके इत्तेहादियों ने इराक पर सख्त पाबंदियां लगा दी। इराक में एक नो फ्लाई जोन कायम कर दिया गया। अमरीकी तैयारे तुर्की और सऊदी अरब से उड़कर इराक की फ़िज़ाई निगरानी करते थे। ये होते होते 2003 आ गया। इस साल अमरीकी सदर जॉर्ज बुश के बेटे जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमरीका के सदर थे। वो भी अपने वालिद की तरह सद्दाम हुसैन के बदतरीन दुश्मन थे और इराक पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने सद्दाम हुसैन पर तबाही फैलाने वाले हथियार रखने का झूठा इल्ज़ाम लगाया और जंग की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने अमरीकी CIA के चीफ जॉर्ज टेनेट से भी इस हवाले से झूठे बयान दिलवाए। अमरीकी मीडिया में ये ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा किया गया कि सद्दाम हुसैन के पास वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार मौजूद हैं। इनके अलावा केमिकल वेपन्स हैं। अगर इन वेपन्स को तबाह नहीं किया गया तो हथियार वो अलकायदा को दे देंगे। सद्दाम हुसैन पर अमरीका में 9/11 हमलों में अलकायदा की मदद का इल्ज़ाम भी लगाया गया। इस सारे इल्ज़ामात के बाद अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया की फ़ौजों ने इराक पर हमला कर दिया। 21 रोज़ की लड़ाई के बाद इत्तेहादियों ने इराक पर कब्जा कर लिया। ताहम सद्दाम हुसैन उनके हाथ नहीं आए। वो बगदाद से फरार हो गए और अपने आबाई शहर तकरीत के करीब एक नामालूम मकाम पर छुप गए। सद्दाम हुसैन के फरार के बाद जब अमरीकी फोर्सेस ने इराक में फ़ौजी अड्डों की तलाशी ली तो उन्हें कहीं से भी तबाही फैलाने वाला एक भी हथियार नहीं मिला। जब ये सच दुनिया के सामने आया तो अमरीकी हुकूमत इराक के मामले पर झूठ बोल रही थी, तो दुनिया भर में अमरीका पर शदीद तनकीद हुई। अब अमरीकी हुकूमत के पास फेस सेविंग का एक ही तरीका था कि वो सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करें और इन पर झूठे सच्चे मुकदमात बनाकर उन्हें सजाए मौत दे दें। उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन सद्दाम हुसैन को तलाश करना आसान नहीं था। 9 माह तक उनका कुछ पता नहीं चला। उन्होंने सद्दाम हुसैन के बारे में मालूमात देने के लिए $25 मिलियन इनाम भी रखा, लेकिन इस लालच में भी कोई मुखबर उनके बारे में मालूमात नहीं दे सके। दिसंबर 2003 में अमरीकियों ने एक छापे के दौरान कुछ माहीगीरों को गिरफ्तार किया। उन माहीगीरों में सद्दाम हुसैन के करीबी साथी जनरल इब्राहिम उमर भी शामिल थे। वो सद्दाम हुसैन के चीफ बॉडीगार्ड और करीबी रिश्तेदार भी थे।
वो भी बगदाद पर अमरीकी कब्जा के बाद रूपोश हो गए थे। अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इनसे CIA के एक इंटेरोगेशन सेंटर में तफ्तीश की गई। अमरीकियों ने इन्हें $25 मिलियन इनाम का लालच देकर खरीद लिया। इनाम के लालच में इब्राहिम उमर ने सद्दाम हुसैन का पता बता दिया। उन्होंने ये भी बता दिया कि सद्दाम हुसैन मुसलसल अपनी जगह बदलते रहते हैं। वो दरियाए दजला के किनारे छोटी सी कश्ती में सफ़र करते हैं और रात के वक्त शहर की छोटी छोटी गलियों से होते हुए एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने में चले जाते हैं। जनरल इब्राहिम उमर के मुताबिक सद्दाम हुसैन तकरीब से 10 किलोमीटर दूर दरियाए दजला के किनारे पर एक बड़े फार्म हाउस में छुपे हुए थे। 13 दिसंबर 2003 की रात अमरीकी फ़ौज ने इस फार्म हाउस पर रेड किया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन रेड डॉन का नाम दिया गया। कई घंटों की तलाशी के बावजूद अमरीकी फ़ौज सद्दाम हुसैन को ढूंढने में नाकाम रही, क्योंकि वो फार्म हाउस के करीब एक तहखाने में मौजूद थे। अमरीकी कमांडो मायूस होकर वापस जाने वाले थे कि अचानक उन्हें तहखाने का पता चल गया। वो इस तरह कि एक अमरीकी कमांडो ने घास फूस का एक ढेर देखा। उसने उसे ठोकर मार दी तो नीचे साफ जगह देखकर वो चौंक गया। उसने बाकी साथियों को बुलाया और सब ने मिलकर उस जगह से मिट्टी हटानी शुरू कर दी और नीचे देखा तो तहखाने का ढक्कन मौजूद था। उन्होंने ढक्कन भी हटा दिया। ढक्कन के नीचे एक सुरंग मौजूद थी। इस सुरंग में सद्दाम हुसैन छुपे हुए थे। अमरीकी कमांडो का बयान है कि वो सुरंग में हम बम फेंकने वाले थे, लेकिन सद्दाम हुसैन हाथ उठाए खुद बाहर आ गए। उन्होंने कहा, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मैं इराक का सदर हूँ और मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। जवाब में एक कमांडो ने कहा, प्रेसिडेंट बुश की तरफ से खुशामदीद। इसके बाद कमांडो ने उन्हें बाहर निकाला और उनके मुंह पर मुक्का मारा और कहा, यह 9/11 की तरफ से कबूल करो। अमरीकियों ने सद्दाम हुसैन के DNA, उनके जिस्म पर टैटूज़ के निशानात और एक ख़ास निशानी से उनके सद्दाम हुसैन होने की तस्दीक की। वो निशानी ये थी कि उनके कबीले का ख़ास टैटू हाथ की उंगली और अंगूठे के दरमियान बनाया जाता था। फिर सद्दाम हुसैन की बाईं टांग पर एक ज़ख्म भी था, जो 1959 में उस वक्त लगा था जब वो इराकी वज़ीर आज़म अब्दुल करीम कासिम का तख्ता उलटने और उन्हें कत्ल करने की कोशिश में शरीक थे। सद्दाम हुसैन को अमरीकियों ने 3 साल तक कैद रखा, लेकिन बाद में सद्दाम हुसैन के एतमाद और दानिशमंदी के कायल हो गए। अमरीकी CIA के एनालिस्ट जॉन निकसन ने उन पर एक किताब भी लिखी। इस किताब में उन्होंने एतराफ़ किया कि सद्दाम हुसैन बहुत जल्द नए माहौल से ख़ुद को एडजस्ट कर लेते थे। गिरफ्तारी के बाद इंटरोगेशन सेंटर में वो यूं पुरसुकून थे जैसे तफरीह के लिए आए हों। फिर उन पर सिविलियंस के कत्ल का मुकदमा चलाया गया। सद्दाम हुसैन इस मुकदमे में अपना दिफा खुद करते थे। उन्हें मालूम था कि अमरीकी उन्हें कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन वो फिर भी डटे रहे। आखिर अमरीकी सरपरस्ती में चलने वाली अदालत ने उन्हें मौत की सज़ा सुना दी। 2006 में दिसंबर के महीने में सद्दाम हुसैन को ईद उल अज़हा के दिन फांसी दी गई। जब सद्दाम हुसैन को उनकी सज़ा के बारे में बताया गया तो उन्होंने एक दरख्वास्त दी। उन्होंने कहा कि मुझे एक मिलिट्री कमांडर जैसी इज्जत दी जाए और फायरिंग स्क्वाड के सामने गोलियों से मारा जाए। वो सीने पर गोली खाकर मरना चाहते थे, लेकिन इराकी हुकूमत ने उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 30 दिसंबर को फांसी वाला दिन था। सद्दाम हुसैन बिल्कुल पुरसुकून थे। उन्होंने आखिरी खाने के तौर पर चिकन चावल खाए और शहद वाला गर्म पानी पिया। फिर उन्हें बगदाद के जस्टिस कैंप में ले जाया गया। उनके लिए फांसी घाट बनाया गया था। फांसी घाट पर चढ़ने से पहले उन्होंने इराकी अवाम जिंदाबाद, मेरी कौम जिंदाबाद और फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इराक की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मौफ़िक़ रबी ने उनसे पूछा कि क्या आखिरी वक्त में आपका कोई पछतावा है या आप किसी बात से डरे हैं? सद्दाम हुसैन ने जवाब दिया, मैं एक जंगजू हूँ। मेरी ज़िंदगी लड़ते हुए जिहाद में गुजरी। इस रास्ते के लोग डरा नहीं करते। उन्होंने वहाँ अपने खिलाफ बोलने वाले लोगों की भी खूब खबर ली। उनके तंज के जवाब में तंज या फ़िक्रे भी कहे। जल्लाद ने उनके चेहरे पर कपड़ा डालना चाहा। सद्दाम हुसैन ने मना कर दिया। जल्लाद ने उन्हें बताया कि अगर कपड़ा नहीं डालेंगे तो रस्सी से आपकी गर्दन कट भी सकती है। मजबूरन सद्दाम हुसैन ने उसकी इजाज़त दे दी, लेकिन उन्होंने जल्लाद का कपड़ा कबूल नहीं किया, बल्कि अपना मफलर चेहरे और गर्दन के गिर्द लपेट लिया। सद्दाम हुसैन खुद चलकर तख्ता-ए-दार तक गए। जल्लाद ने उनके गले में रस्सी डाली और उन्हें फांसी दे दी। फांसी दिए जाते वक्त उनकी ज़बान कलमा तैयबा का विर्द कर रही थी। ईद उल अज़हा बकरीद की सुबह 6:10 पर उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी लाश 9 मिनट तक फंदे से झूलती रही। इसके बाद उनकी लाश को तकरीब में ही दफन कर दिया गया। नाजरीन, इराक की सदर सद्दाम हुसैन की बायोग्राफी आपने देख ली। 1965 की पाक भारत जंग पर हमारी शानदार डॉक्यूमेंट्री यहाँ देखिए। यहाँ देखिए कि तुर्किया सुपर पावर कैसे बन गया, और यहाँ देखिए कि अजीम मुजाहिद टीपू सुल्तान की बहादुरी की दास्तान।